Okay. Actually, the weather is also stormy here, so network issue Uh-huh. can be there here also. Today in Kerala, a little bit problem in the this one in network. I Okay. don't know why. In the morning itself, it's like coming, going like that. Okay. Right. Got it. Hello, Mukulji. Good evening. Hi, Jessica. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Nisha. Good evening. Okay. Please wait for 1 minute. Let others join. I'm just going to start. It's interesting session. It will be. Sure, sure. किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. Hello, Renesa ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Namaste, sir. Namaste. Namaste, Neha ji. Good evening. Good evening. आज का रिकॉर्डिंग ना भी हो सकता है, मुझे पता नहीं अगर लोड सेटिंग हो जाता है तो, क्योंकि पावर ऑफ हो रहा है बार बार. Okay, today our session will be very specific. Okay, very specific and बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम. Only we'll find out the disease. Okay, we shall find out the disease part. Hello, Neelam ji. Good evening. Good evening, sir. Good evening, all. How's your health, sir? Uh, Fit little bit, and let me share the screen. Okay, is it visible to all? It's Yes, not sir. that much. It's not that much clear. Is it clear Okay, right now, now? no, it's a clear. It's clear now. Okay. Okay, okay, sure. Hello, Sapna ma'am. Good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening. Hi, Simple ji. Good evening. ओके, सो आप लोग थोड़ा बताइए मुझे इस हैंडराइटिंग के बारे में लिटिल बिट. उसके बाद मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिजीज आ सकता है इन दैट केस. सो इट्स ए 30 years ओल्ड, एक लड़की के है इस हैंडराइटिंग. हेलो दिव्या मैम. गुड इवनिंग. Left-handed handwriting, sir. हाँ क्या? Left-handed handwriting. नो नो नो, नॉट लेफ्ट हैंडेड, इट्स राइट हैंड. It's the interesting case. Actually, the couple came to me for the couple therapy. Okay, couple therapy is there. So there are some sexual counseling is there. So आप कोई मुझे बताइए इसके हैंडराइटिंग में से आपको क्या नज़र में आ रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ इन डिटेल. So middle zone handwriting है mostly. ओके, मिडिल जोन हैंडराइटिंग, राइट. Sir, disconnected है and ओके, आपके नज़र में सबके सामने आगे क्या आ रहा है? हैव यू The नोटिस्ड? down part they have not used, sir, for P, Q, and all. राइट राइट राइट. baseline भी sir is have challenging. Yes.
सो यहाँ पे Different आपको दिख रहा है slants. कि लेफ्ट मार्जिन एंड एक्चुअली नैरो लेफ्ट मार्जिन इज वेरी नैरो, इजंट इट? बहुत ज्यादा लेफ्ट से शुरू किया है. So it indicates traumatized past life. Traumatized past life. Is it And clear? sir, slants are different. Slants are different, right? Right. I hope Jessica is here. Jessica, are you there? Yes. ओके ओके ओके. मैं आज जितना भी केस दिखाऊंगा जेसिका में एविडेंस है, ठीक है? जेसिका मेरे साथ कर रही थी इन लोगों का काउंसलिंग मेरे साथ. सो थैंक यू जेसिका. Welcome. So anyway, narrow left margin and wavy waistline. तो यहाँ पे आपको क्या नजर में आ रहा है? Male energy and female energy both are imbalanced, isn't it? तो सबसे पहले आपको नजर में ये आएगा कि both are imbalanced, male energy and female energy. उसके बाद आप लेटर P को देखो. लेटर P जो नीचे नहीं जा रहा है, हैव यू नोटिस्ड? जो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है. लेटर P. अभी लेटर F को देखिए. लेटर F, लेटर K, ये सब लेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, isn't it? Unnecessary. एंड एक और चीज, लोअर जोन को भी देखिए. लोअर जोन मीन्स द लेटर Y का जो नीचे वाला पार्ट, लेटर Y का, लेटर G का नीचे वाला पार्ट को देखिए. ये बहुत ज्यादा मिडिल जोन में आ रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ये लोअर जोन का पार्ट लोअर जोन पे नहीं जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है. लेटर G एंड Y. तो इन दैट केस, एंड इसके साथ और भी आप देख सकते हो कि ये लोअर जोन, बैड लोअर जोन के साथ clockwise letter G. Have you noticed the letter G is not anti-clockwise written? It's clockwise, isn't it? समझ में आ रहा है सबको? तो सिमिलर वे में आप इस तरीके से देखोगे तो सबसे आगे क्या इसका प्रॉब्लम सब क्या नजर में आएगा? मैंने जो अभी तक जो पार्ट को मैंने कहा उस पार्ट में से सबसे आगे प्रॉब्लम क्या आएगा? जहां पे मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी आर इम्बैलेंस्ड. एंड उसके साथ आप ऐड कीजिए कि इसका एक्चुअली मेन इशू है बेबी नहीं हो रहा है. बेबी इज नॉट देयर, ठीक है? 7 years ऑफ मैरिज एंड इसके लास्ट 5 years से कंटिन्यू कोशिश कर रहा है लेकिन नो बेबी इज देयर. तो बेबी होने के लिए सबसे आगे क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लोअर जोन, इजंट इट? द ओवरी पार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग. एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसका ओवरी में गड़बड़ है, लेकिन ये जो क्लॉकवाइज लेटर G है, ये क्लॉकवाइज लेटर G एंड एंटी क्लॉकवाइज लेटर G, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताइए, कोशिश कीजिए कोई. सर वो नीचे से स्टार्ट करेगी ना G लिखना पहले. हाँ एग्जैक्टली. तो यहाँ पे क्या होता है? क्लॉकवाइज में रिग्रेशन आते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज में प्रोग्रेशन आता है. जैसे राइट साइड जाते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट साइड जाते हैं, इजंट इट? द ओवल वाला पार्ट. तो यहाँ पे रिग्रेशन हो रहा है, ठीक है? द ओवरी में रिग्रेशन. अंडरस्टूड ऑल? एंड जो आपको लेटर लोअर जोन वाला लेटर दिख रहा है कि ये नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है. सो दैट मीन्स फियर. दैट इज द मेन प्रॉब्लम, फियर इशू. ओके? तो इसी फियर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन सब जगह पे. इज इट क्लियर टू ऑल? एंड उसका प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम है? वेरी हाई एंगर इशू इज वेरी हाई. एंड ऑलवेज इसका एक्चुअली प्रॉब्लम है इसके हस्बैंड को. इसका जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये प्रॉब्लम ओनली एक तरफ से आएगा तो बेबी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? दोनों तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली इसका हस्बैंड का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. बहुत ज्यादा शादी से पहले बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी एडिक्टेड या मस्टरबेशन रिलेटेड इशू था. तो अभी उसका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रिलेटेड इशू है उसके हस्बैंड को. सो 1 मिनट भी वो, मतलब 30 सेकेंड भी वो लास्टिंग नहीं कर सकता. So that is why he is having so many problem right now and always his wife is scolding his husband. ठीक है? उसके हस्बैंड
को हमेशा सबके सामने ये डांट देता है, एंड हस्बैंड लोग क्या होता है, वो हस्बैंड बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड हो जाता है सबके सामने, किसी को कह भी नहीं सकता, ठीक है। एंड ही इज ए ड्राइवर ऑब्वियसली हिज हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक के घर में आते हैं, एंड इतना ह्यूमिलिएशन मिलता है घर में कि आपसे कुछ भी नहीं होता, मेरा शादी करके मेरा लाइफ बर्बाद हो चुका है, ठीक है। इस तरह का बातें एवरीडे सुनना पड़ता है। तो ये सब उसके हस्बैंड का इशू है, उसके बाद से इसका इशू बन गया। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अभी उसका हस्बैंड को ठीक भी कर दोगे तो ये ठीक होना बहुत मुश्किल है इनका। तो मैंने उसको कहा है कुछ ओवल्यूशन जो कैलेंडर होता है, ओवल्यूशन कैलकुलेटर जो होता है, उस हिसाब से मैंने कुछ डेट दिया है, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट महीना। इस महीना चला गया इसका मेंस्ट्रुएशनल ओवल्यूशन डेट, तो नेक्स्ट महीना देखा जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस उसके डिजीज के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सर इसको क्यों नहीं ठीक कर सकते, वाइफ को क्यों प्रॉब्लम? हाँ क्या क्या? वाइफ इसको क्यों नहीं हम क्योर कर सकते? हाँ, इसको भी तो क्योर कर सकते हैं, इसको भी क्योर, एक्चुअली क्योर होने के लिए दोनों चाहिए, इसीलिए तो कपल थेरेपी में आई थी वो दोनों को ही थेरेपी दे रहे थे हम, ठीक है। दोनों को काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन काउंसलिंग तो एक दिन में नहीं होता है इन सब जगह में, क्योंकि बहुत पुराना प्रॉब्लम है। तो इसके हस्बैंड को बहुत सारा प्रोसेस मैंने सिखा दिया, कुछ केगल एक्सरसाइज दिखाया, स्क्वीज टेक्निक दिखाया, एंड और भी कई सारे टेक्निक मैंने दिखाया जो उसके हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड? यस। एंड यस, एंड यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम lack of foreplay can create this type of issue also, ठीक है। lack of foreplay, क्योंकि उसके हस्बैंड के मन में ओनली एक जगह पे ही उसका माइंड घूमता रहता है, एंड फोरप्ले में क्या होता है, हर जगह पे होता है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन इन दैट केस, दिस टाइप ऑफ पेशेंट, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट दिखा देते हैं, नेक्स्ट हैंडराइटिंग। Is it visible right now? Yes, sir. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा बताइए इसके बारे में। Connectivity is there, sir. Same इधर भी थोड़ा वाई थोड़ा नीचे लोअर जोन थोड़ा लो है सर इधर पे। ओके ओके। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सेम मार्जिन आल्सो सर। ओके, तो आपको यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, लेफ्ट मार्जिन बेस लाइन्स आर इम्बैलेंस्ड, है ना। बेस लाइन्स वेवी दिख रहा है, ऑल लाइन्स आर वेवी, इट्स नॉट स्ट्रेट। सो बेस लाइन इंडिकेट्स आवर मेल एनर्जी and female energy is indicated from the left side. So left side and male and female both are imbalanced, ठीक है। एंड आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम लेटर को देख के ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा करके लिखा है, ठीक है। एंड एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, मोनोटोनस कनेक्शन, मतलब ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, है ना। एक और चीज भी आप देखिए सर, स्क्वीज्ड राइटिंग। हाँ, स्क्वीज्ड, ओके ओके। एंड आई डॉट में देखिए, आई के डॉट जो है वो स्लैश की तरह हो रहा है, नॉट लाइक ए डॉट, ठीक है। एंड एक चीज और देखना पड़ेगा आपको कि द हैंडराइटिंग लुक्स वेरी वेरी शार्प, isn't it sharp handwriting? It's not pasty handwriting. Some negative pastosity is there, ink flow is there, but generally the writing is sharp. And एक जगह पे आपने नोटिस किया करना चाहिए था, that is the main issue.
देखिए इसके हर अपर जोन का लेटर एल, लेटर डी, लेटर कोई भी अपर जोन को देखो एक डॉट मिलेगा इसके अपर जोन में। हैव यू नोटिस्ड? एक डॉट, इसको इंक ब्लॉब कहते हैं। मैं दिखा देता हूँ। हैव यू नोटिस दिस इज अ इंक डॉट अपर वाला पोर्शन में, लेटर एल में, लेटर एल के ऊपर, लेटर आर के ऊपर में देखिए ये डॉट अननेसेसरी आ रहा है। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? हर जगह पे आपको डॉट मिलेगा। लेटर आर, लेटर एल, यहाँ पे देखिए सबको दिखाई दे रहा है ये डॉट वाला एरिया। अपर जोन का ये डॉट इंडिकेट करता है हम लोगों का हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये एक 22 इयर्स की लड़की है एंड इसका भी प्रॉब्लम को देखिए। अभी आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, उस प्रॉब्लम को या फिर फिट करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 साल के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ था। 2-3 साल के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्रेन ट्यूमर निकल रहा था। सो उस ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था जो आपको अभी दिख रहा है उस डॉट से। गेटिंग ऑल ऑफ यू? इसके बाद आप देखोगे इस लड़की क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होते जाते हैं। ठीक है, स्लो होते जाते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते जाते हैं। लेकिन बहुत मेहनत करके उसने अपने 10th स्टैंडर्ड को पास किया, 12th स्टैंडर्ड को भी पास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत कर, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में फेल करते रहते हैं। ठीक है, एंड पीसीओडी रिलेटेड इशू है। पीसीओडी रिलेटेड इशू है, थोड़ा ओवरी में सिस्ट आ रहा है एंड वेरी एंशियस, ऑलवेज एंशियस मेंटलिटी। तो अभी आप ये एंशियसनेस कहाँ से दिख रहा है? ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। जितना कनेक्शन बढ़ेगा उसका मन एक जगह पे रहेगा। ठीक है, वो बार बार एक ही काम करता रहेगा। अंडरस्टूड? एंड द पर्सन विल बी वेरी स्लो। ठीक है, तो उसने वो आई थी हम लोगों के पास क्या करने में, मेंटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके माँ उसको लेके आई थी एंड अगर उसके माँ को कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिलता रहेगा, मेंटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया, हम लोगों ने उसको रेफर कर दिया एंड आईक्यू डिटरमाइन किया एंड उसके बाद आईक्यू मुझे पता नहीं कितना आया था। तो आईक्यू अगर लो होगा तो ऑब्वियसली मेंटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, चलो एक और हैंडराइटिंग देख लेते हैं। सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग सैंपल। इसके बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या नजर में आ रहा है? Margin is narrow but in correct order, sir. All the lines are in correct order. Lower zone is good. Okay. Even the upper zone is quite comparatively good, sir. Extra inflow, sir. Extra inflow. Connect. Okay. Sir, lower zone is angular. Yes, sometimes. Yes. सर सी इसका डिफरेंट है ना सर? सी Letter C. Okay. सर टी का बार भी बहुत ऊंचा है। ओके, लेटर टी के बार बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है ना? नीचे, सॉरी, बार नीचे है बट हाइट इज वेरी ये। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका लेफ्ट मार्जिन इज स्ट्रेट, लेफ्ट साइड इज स्ट्रेट, सो दैट मीन्स द पर्सन हैव माइंड एंड बॉडी कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आ गया, माइंड एंड बॉडी कंट्रोल इज देयर। लेकिन लेफ्ट मार्जिन इज बहुत ज्यादा नैरो हो रहा है, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो व्हाट दैट इंडिकेट? ट्रॉमाटाइज पास्ट लाइफ में ट्रॉमा है। ठीक है, एंड इसके बेस लाइन को देखो, बेस लाइन वेवी है, नो लाइन्स आर स्ट्रेट।
all lines are wavy. So that means male energy is imbalanced, female energy is okay, accepted, but male energy is imbalanced, isn't it? So मेल एनर्जी अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है किसी के भी लाइफ में, ठीक है? ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड लेटर टी एंड एच को देखो एक साथ, टी बड़ा है एच छोटा है, हैव यू नोटिस्ड? टी बड़ा एच छोटा, टी बड़ा है एच छोटा है, एंड बेसिकली टी इज वेरी लॉन्ग एक्चुअली। अच्छा, अभी इसको देखिए, लेटर एल को देखिए, लेटर एल इज रिट्रेस, मतलब कोई गैप नहीं है, जिस लाइन से ऊपर गया है उसी लाइन से नीचे आया है, लेटर एल, रिट्रेस, क्लियर? सो रिट्रेस होने से क्या होता है, आइडिया, मेंटल आइडिया जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, किसी का एडवाइस नहीं सुन सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी का आइडिया, ओके? व्हाटएवर आई विल से दैट विल बी द करेक्ट, क्लियर? अच्छा, वेरी लॉन्ग लेटर टी विथ ए स्लैश बार, लेटर टी के बार को देखो स्लैश की तरह हो रहा है, ऐसे छोड़ रहा है, इट्स नो कंट्रोल इज देयर, है ना? सबको दिख रहा है ना? लेटर टी के बार को देखो स्लैश की तरह हो रहा है, सो रिलेशनशिप इशू मस्ट बी देयर। लेटर टी के बार में अगर स्लैश होता है तो रिलेशनशिप इशू मस्ट बी देयर, कोई बचा नहीं सकता, क्लियर? अच्छा, इसके लेटर डब्ल्यू को देखो, लेटर डब्ल्यू को देखिए, डब्ल्यू में थोड़ा राइट साइड में एक नॉट की तरह हो रहा है ना? एक छोटा सा नॉट की तरह हो रहा है लेटर डब्ल्यू में, देखिए, इजंट इट? हर जगह पे देखिए लेटर डब्ल्यू में थोड़ा एक नॉट की तरह हो रहा है, क्लियर? अच्छा, लेकिन इसका अपर जोन इज गुड, अपर जोन है, ऐसा नहीं कि अपर जोन बहुत छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली मेंटल कैपेसिटी इज हाई, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। बट एक और चीज जो आपको देखना पड़ेगा, लोअर जोन का लेटर जो जहां पे जी एंड वाई है, उसका एंडिंग पार्ट को देखो, एंडिंग वाला जगह को देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज यहाँ पे देखिए एंडिंग पार्ट, जी के जो एंडिंग पार्ट, क्या हो रहा है, नजर में क्या आ रहा है? Isn't it slash? शार्प हो रहा है ना? एंगल है सर। हाँ बिल्कुल, सो एक नाइफ की तरह शार्प हो रहा है एंडिंग पॉइंट में, सो ये कोई भी बचा नहीं सकता, ये अगर किसी में होता है तो रिलेशनशिप इशू किसी भी हालत से बचा नहीं सकता, ठीक है? क्लियर? इसके बाद और देखिए, लेटर कैपिटल बी को देखिए, नीचे से गैप है ना? कैपिटल बी में नीचे से गैप आ रहा है, सो ऑब्वियसली उसके हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? सो ये इन फ्यूचर हार्ट इशू ऑब्वियसली होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट लेटर एफ को देखिए, एफ के नीचे वाला पार्ट में देखिए एक लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, लेटर एफ को एक बार नोटिस कीजिए, एंड स्लैश की तरह हो रहा है, मतलब लास्ट एंडिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है लेटर एफ में, सो पास्ट लाइफ में डिस्टर्बेंस, पास्ट लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है इन सब जगह से। एंड अभी देखिए लेटर एस, लेटर एस को देखिए, लेटर एस में क्या है, कभी कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एस है, यहाँ पे देखिए लेटर एस को ऊपर में एक नॉट की तरह आ रहा है, यहाँ पे नीचे में नॉट की तरह आ रहा है, लेटर एस इज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पे देखिए लेटर एस को ऊपर में एक नॉट की तरह आ रहा है ना, एक छोटा सा नॉट। तो ये सब मिला के जो जो पॉइंट मैंने कहा, अभी इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके उसका कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, आप उसको मिला लीजिए, ठीक है? सबसे पहले ये उसके हस्बैंड को लेके फैमिली थेरेपी के लिए आई थी, हस्बैंड को लेके। तो प्रॉब्लम क्या है, द गर्ल इज वेरी गुड मुस्लिम फैमिली का है, एंड कंप्लीटेड एमए कंप्लीट किया है इन बंगाली में। तो इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी छुपा हुआ है,
ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी छुपा हुआ है कुछ करने के लिए, लेकिन ड्यू टू पॉवर्टी बहुत पुअर है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी ये हाउसवाइफ हो गई है। तो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके जो मन में है वो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम है उसके हस्बैंड से कहता है, लेकिन हस्बैंड समझता नहीं है। ठीक है, इसीलिए डेलिबरेट DSH प्रॉब्लम, DSH मींस डेलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को बहुत ज्यादा हार्म कर पहुंचाना चाहते हैं। ये ट्रिमर है, उसके हाथ को ऐसे देखोगे तो ऐसे ट्रिमर करेगा, ठीक है, ऐसे शेकिंग होता रहेगा। ठीक है, डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा है, इसका BDI टेस्ट हुआ था डिप्रेशन वाला, तो वहां पे निकला था मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन लेवल। एक बच्चा है 4 महीने का एंड 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी है ये, इसलिए बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये हमेशा अपने हस्बैंड को डाउट करता रहता है, सस्पिशियस नेचर है। लव मैरिज हुआ था 6 इयर्स एगो, लेकिन एक दिन के लिए भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। लिबिडो फ्रस्ट्रेशन मस्ट बी देयर। एंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने हस्बैंड को रेड हैंडेड पकड़ा था उसके भाई के, हस्बैंड के जो भाई है, भाई के वाइफ के साथ। ठीक है, कुछ ज्यादा इंटीमेसी में रेड हैंडेड पकड़ा था। तो उसके बाद से ही हर तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर शुरू हो चुका है। उसके हस्बैंड मुझे कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमेशा वो एक ही घर में रहता है, एक ही जगह पे रहता है, तो हमेशा सबको मिला के ही रहना पड़ेगा। तो वो लड़की, उसके भाई के वाइफ जो है, वो लड़की उसके सामने आ जाती है हस्बैंड को, तो उसके आंखों में दिख जाता है, तो ये डाउट करना शुरू कर देता है ये लड़की। अंडरस्टूड? तो ये सब मिला के वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा एक चीज नोटिस कीजिए, ये एक जैसे कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, बहुत पुअर फैमिली में रहता है, फिर भी मास्टर डिग्री कंप्लीटेड हो चुका है, MA कंप्लीट किया है, तो ये कुछ अच्छा काम कर सकती है अगर ये चाहते थे तो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसके लाइफ टोटल डैमेज हो रहा है ना? कुछ भी नहीं, हस्बैंड के ऊपर भी शक हो रहा है, सस्पिशियस नेचर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा, तो ऐसा तो होगा ही। दिस आर वेरी कॉमन। अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे थेरेपी मुझे देना पड़ा, कुछ थेरेपी दिया था, देखते हैं क्या होता है थेरेपी के बाद। लेकिन वो सुसाइड वाला अटेम्प्ट फिर से नहीं करेगी, मैंने समझा दिया था, फिर से नहीं होगा, उसको थेरेपी मैंने दे दिया था सुसाइड का। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए। सुसाइड डिप्रेशन की आपने थेरेपी क्या दिया? हाँ, क्या थेरेपी क्या दिया डिप्रेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ साइकोलॉजिकल